Good morning, student. Today we discuss about that the another part of suspension system. This the suspension system is important for some any kind of the light motor vehicles and two-wheeler also because it is suspected that some stuck assembly for Mac person stuck, and this is important for some absorbing the shocks and then cushioning effect to this absorber, cushioning effect to the passenger and then driver also. The image is in front of you is acting on that is shown as some spring, and this spring is important to absorb in the shocks. When it is connected to the axle, this drive axle is connected with the help of some the clamps. This clamp is material is used in stainless steel or mild steel for their the different type of the purpose for super utility vehicles or in sports car or this some domestic car is here. And when it is acting with the help of some the damping, and into these dampers we momentum of the pistons, this momentum is required some filling in the fluid here, and this fluid momentum dampers is helpful for up and down motions. These up and down motions is consist a shock absorber, a coil spring, and upper damper units. These all parts is shock absorber, coil spring, and upper damper units is useful for struck assembly. Often replace the upper control arm, and this upper control arm is helpful for used into these different parts. Okay, the next part is here the testing about the suspension systems. This suspension system we have while we checking the shock absorber in condition of their first is the bounce test. The bounce test is push down one corner of vehicles and another is released to the body and count the number of the times of the vehicles to rebound here. So good, no more than 2 bounce is required for the shock absorber. So when it is some leakages shocks it takes place into this checking for the sign of the leakage is useful for if oily weights takes place here of or it is a takes place into them some replacement of different kind of the bodies, and this different kind of this oil replacement of their oily weights and sign of the leakage is required for some checking and bouncing takes place. And this bouncing test is useful for how much the capacity for so how much the capacity for this the shock absorber it is a good condition or it is some replacement for this 2 bounce is required. Then replacing the coil spring is here, which is taken in the form of that need to compress the coil spring before removing, and then when the compressed oil spring are tremendous amount of the store energies it will be released the expansion and the construction takes place into the spring. Leaf spring will be also used into this some suspension system. This leaf spring is all forces must be covered removed, and from there the leaf spring before removing this eyes and shackle bolt. Eyes or the shackle bolt is here. Some heavy vehicle just like this the tractor and trolleys or some the trucks we are using this type of the leaf spring which will maintain some heavy loads approximately 1 ton to the 10 ton weight of their total vehicles with loaded materials or unloaded materials, and which is helpful for used into them for different machines. These different machines or different leaf spring useful for different kind of the things, and when it is used a different kind of things which will be helpful for that is a leaf spring here. Next is here suspension systems in different parts, and this checking the all ball joints which is used in shown as a black diagram. This all ball joints is helpful for some absorb the shocks if the spring is over on these lower control arms and jack and goes under the control arm. If the spring is upper control arm, jack stands goes under this frame, so it is helpful for play in any found in any, and it is helpful for absorb the shocks and provide this cushioning effect. The next is here the tie rod suspension. This is the image, it's some focusing on that some circle, and this circle is tie rod inspection. This tie rod inspection takes place here when it is some changes the part
Just like this outer tie rod, it is closest to the wheel, which is helpful for absorb the shocks, and it acts as some suspension for sleeve adjustment, and this sleeve adjustment is provide this cushioning effect. This is a move to the wheel side to sides in caster or camber or two in two out angle is created and should not be played. So last part is here. It is always grease all these points. It is helpful for suspension systems, and this grease is helpful for some moving to reduce the tear and wear and friction also with the help of some the grease. So I like to show as some videos from taken us from suspension system itself. Please listen. जब गाड़ी रोड पर चलती है तो उसके कंफर्ट और स्टेबिलिटी के लिए सस्पेंशन सिस्टम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। पहले के ज़माने में इवन आज के ज़माने में भी व्हीकल में मोस्टली लीफ सस्पेंशन और कॉइल सस्पेंशन यूज होता है, जो सिंपल और स्ट्रॉन्ग तो होता है लेकिन राइड कंफर्ट एवरेज होता है। आज के मॉडर्न ज़माने में एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो दोनों सिस्टम से कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है, और वो है एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये सिस्टम कंप्रेस्ड एयर का यूज करके राइड को अल्ट्रा स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ हैंडलिंग इंप्रूव करता है और व्हीकल के परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है। आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि एयर सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एयर सस्पेंशन एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो मेटल स्प्रिंग के जगह कंप्रेस्ड एयर का यूज करता है। यानी यहाँ पर एयर स्प्रिंग होती है जिसमें कंप्रेस्ड एयर भरकर शॉक एब्जॉर्ब किया जाता है। इससे राइड क्वालिटी स्मूथ हो जाती है और ड्राइवर को गाड़ी की हाइट और कंफर्ट को कंट्रोल करने की फैसिलिटी भी मिलती है। एयर सस्पेंशन सिस्टम कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे पहले आता है एयर कंप्रेसर। ये सिस्टम का हार्ट होता है जो नॉर्मल एयर को कंप्रेस करता है और उसे हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट करता है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा होता है जिसमें गाड़ी में लगे बैटरी से पावर दी जाती है। कंप्रेसर से निकली कंप्रेस्ड एयर डायरेक्टली यूज नहीं होती, बल्कि एक रिजर्वायर या स्टोरेज टैंक में स्टोर की जाती है। इससे फ़ायदा ये होता है कि सिस्टम को जब ज़रूरत हो एयर रेडी मिल जाती है और कंप्रेसर को बार बार ऑन या ऑफ नहीं करना पड़ता। स्टोरेज टैंक को हाई स्ट्रेंथ स्टील या एल्युमिनियम एलॉय से बनाया जाता है ताकि ये हाई प्रेशर और वाइब्रेशन को आसानी से झेल सके। नॉर्मली इस टैंक की वर्किंग प्रेशर रेंज 8 बार से 12 बार होती है, यानी लगभग 120 psi से 175 psi तक। और सेफ्टी के लिए इसकी ब्रस्ट प्रेशर कैपेसिटी उससे कई गुना ज़्यादा होती है। मतलब अगर वर्किंग प्रेशर 12 बार है तो टैंक 25 बार या उससे ज़्यादा तक टॉलरेट करने के लिए डिज़ाइन होता है। इसी वजह से इस टैंक में सेफ्टी वाल्व भी लगाया जाता है। अगर प्रेशर लिमिट से ऊपर चला जाए तो ये ऑटोमेटिकली एयर रिलीज करके टैंक को डैमेज होने से बचाता है। इसमें लगे इस गेज को प्रेशर मेजरिंग गेज या प्रेशर गेज कहा जाता है। अगर आपको प्रेशर गेज और इसके वर्किंग के बारे में डिटेल्स में जानना है तो मैंने इस टॉपिक पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके एक बार ज़रूर चेक करें। नाउ बैक टू द पॉइंट। इन सब के अलावा स्टोरेज टैंक में एक ड्रेन वाल्व भी लगा होता है जिसका काम टैंक के अंदर जमा मॉइस्चर और डस्ट पार्टिकल को बाहर निकालना होता है। स्टोरेज टैंक के ऊपर कई पोर्ट्स लगे होते हैं जिसमें सबसे पहले आता है इनलेट पोर्ट। यहाँ से कंप्रेसर से आई हवा टैंक के अंदर जाती है। इसके साथ यहाँ पे एक चेक वाल्व भी लगा होता है जो एयर को वापस कंप्रेसर में जाने से रोकता है। चेक वाल्व का डिज़ाइन कुछ इस प्रकार होता है कि जब एयर एक बार इसके थ्रू पास हो जाता है तो वापस एयर कंप्रेसर में नहीं जा पाता। इससे फ़ायदा ये होता है कि कंप्रेसर में जो पिस्टन, डायफ्रेम और सील लगे होते हैं वो बिल्कुल सेफ रहते हैं। इनलेट पोर्ट के बाद आता है आउटलेट पोर्ट। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को एक पाइप के थ्रू सोलेनॉइड वाल्व में भेजा जाता है। जब कंप्रेस्ड एयर को स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लिया जाता है तो इस कंप्रेस्ड एयर को पाइपलाइन के थ्रू सोलेनॉइड वाल्व में भेजा जाता है। सोलेनॉइड वाल्व एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल वाल्व होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिलने पर एयर को ओपन या क्लोज करता है। ये वाल्व मेनली एयर बैग और स्टोरेज टैंक के बीच कंट्रोल पॉइंट के रूप में काम करता है। नॉर्मली सोलेनॉइड वाल्व में 3 पोर्ट लगे होते हैं, इनलेट पोर्ट, आउटलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट।
जब स्टोरेज टैंक से कंप्रेस्ड एयर को सोलेनॉइड वाल्व में भेजा जाता है तो सोलेनॉइड वाल्व के आउटलेट पोर्ट से पाइपलाइन के थ्रू व्हीकल के चारों एयरबैग में इस कंप्रेस्ड एयर को भेजा जाता है। और जब गाड़ी की हाइट को एडजस्ट या कम करना होता है तो एयरबैग के इसी कंप्रेस्ड एयर को वापस सोलेनॉइड वाल्व में इसी पाइपलाइन के थ्रू लाया जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। फाइनली अब बारी है एयर बैग की, या फिर इसे एयर स्प्रिंग भी कहा जाता है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर फिल की जाती है और यही स्प्रिंग का काम करता है। इन सब के अलावा एयर सस्पेंशन सिस्टम में दो और इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और वो है हाइट सेंसर और ECU। ECU का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। हाइट सेंसर डायरेक्टली व्हीकल के सस्पेंशन आर्म से मैकेनिकली लिंक होता है और इलेक्ट्रिकली ECU से कनेक्ट होता है। इस सेंसर का एक हिस्सा व्हीकल के चेसिस से और दूसरा हिस्सा एक लिंक के थ्रू सस्पेंशन के मूविंग पार्ट से जुड़ा होता है। जब गाड़ी की हाइट को बढ़ाया या घटाया जाता है तो सस्पेंशन आर्म की मूवमेंट के साथ सेंसर का एंगल चेंज होता है। इससे सेंसर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है और ECU को भेजता है। ECU इस सिग्नल से ये पता कर पाता है कि गाड़ी का कौन सा हिस्सा ऊपर है और कौन सा नीचे। अब ECU इस सिग्नल डाटा को एनालाइज करके इस सिग्नल को सोलेनॉइड वाल्व को भेजता है। इसी डाटा के बेस पे सोलेनॉइड वाल्व को पता चल पाता है कि किस पोर्ट को खोलना और किस पोर्ट को बंद करना है ताकि गाड़ी की बैलेंस बनी रहे। तो दोस्तों, ये था एयर सस्पेंशन सिस्टम का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। अब आपको समझ आ गया होगा कि एयर सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों इसे मॉडर्न व्हीकल में यूज किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। So this is important video for air suspension systems. Please, I already shared on this the classroom for BTech. So you should be listen this type of and this video. It is helpful for the know about this air suspension system. Thank you.